I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we will learn about birds. We will discover that birds are beautiful creatures with wings and feathers that help them fly. We will learn how their light bodies, strong wings, feathers, and tails help them move easily in the sky. We will also learn that birds have different types of beaks and feet depending on the food they eat and the places they live in. We will learn about the nests of birds and how birds carefully build them to keep their eggs and babies safe. Now comes to the chapter number 7, Bird, a Flying Machine. Birds are the wonderful creation of nature. They are beautiful and melodious. Birds जो होती है वो सबसे सुंदर क्रिएचर है अर्थ की, क्योंकि वो बहुत सुंदर भी होती है और बहुत ही मधुरता आवाज़ वाली भी होती है. They are found in each part of the world. वो हमें हर वर्ल्ड के हर पार्ट में दिखाई देती है. Most of the birds can fly. You can see many birds flying in the sky. हम देखते हैं ज़्यादातर बर्ड्स उड़ती हैं और वो अलग अलग जगह पे हमें आसमान में उड़ती हुई दिखाई भी देती हैं. बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सम बर्ड्स आर बिग, सम बर्ड्स आर स्मॉल. ये अलग अलग साइज़ और शेप की होती है, कुछ बड़ी होती है और कुछ छोटी. दे हैव डिफरेंट कलर्स सच एज अ पैरट इज़ ग्रीन इन कलर, अ क्रो इज़ ब्लैक एंड अ पीकॉक इज़ ब्लू. अलग अलग कलर्स की हमें मिलती है, जैसे पैरट ग्रीन कलर का होता है, क्रो ब्लैक का और पीकॉक ब्लू कलर की. Birds are different from other animals. They have wings which help them in flying. Their bodies are covered with feathers. Birds different होती है एनिमल से. क्यों? क्योंकि उनके विंग्स होते हैं, क्योंकि वो उड़ सकती है और उनकी बॉडी जो होती है वो feathers से, पंखों से कवर होती है. How birds fly? Birds किस तरीके से उड़ती हैं? Let us study about the special features of the birds which help them to fly. अलग अलग features होते हैं birds के जो उनको help करते हैं उड़ने के लिए. Bodies of birds are shaped like a boat that help them to float in the air. Bodies जो होती है birds की, जो शरीर होता है उनका वो boat shape का होता है जो उनको help करता है air में, हवा में उड़ने के लिए. Birds have wings which are made of feathers. उनकी wings feathers से बनी होती है. These wings are like their arms. These wings help them in flying. और वही wings, उनके वही पंख उनको help करते हैं उड़ने के लिए. Bones of the birds are thin and hollow. उनकी जो हड्डी होती है वो बहुत पतली और खाली होती है. The air fills in these bones and makes the body light. और जो हवा होती है वो उनकी उस बोन्स में भर जाती है और उनको उड़ने के लिए हेल्प करती है. लाइट वेट बॉडी कैन गो हाई इन द स्काई. जब उनकी बॉडी लाइट हो जाएगी तो वो आराम से बहुत ऊंचा ऊंचा हवा में, आसमान में उड़ पाएंगे. अ बर्ड ऑल्सो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लाइट मसल्स. दीज मसल्स आर अटैच टू द ब्रीस्ट बोन विच हेल्प देम टू मूव द विंग्स. उनकी मसल्स अटैच होती है ब्रीस्ट बोन से जो इनको हेल्प करती है घूमने के लिए. बर्ड्स मूव द विंग्स अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग. वो अपने पंखों को ऊपर नीचे चलाती हैं. द टेल ऑफ द बर्ड्स कैन एक्ट्स लाइक एन ऑर ऑफ द बोट. इट हेल्प्स द बर्ड्स इज चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. जो उनकी टेल होती है बर्ड की वो उनको हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज करने के लिए. Feathers. A bird's body is covered with feathers. They are of different colors and sizes. There are three main types of feathers. जो birds के body होते हैं वो feather से cover होते हैं, पंखों से cover होते हैं और वो अलग अलग colors और size का होता है. उनके 3 types क्या होते हैं feather के? Down feathers, flight feathers and body feathers. Down feathers. These feathers cover the body of the birds and keep them warm. Down feathers जो होते हैं वो birds की body को cover करते हैं और उनको गर्माहट देते हैं. फ्लाइट feathers जो होते हैं, these feathers help a bird to fly. These feathers are long and flat. They are attached to the wings and tails. फ्लाइट feathers attach होते हैं, जुड़े हुए होते हैं wings और tail से और उसको bird को help करते हैं उड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही लंबे और flat होते हैं. Body feathers. These feathers are all around the bird's body. ये पूरी body पे body feathers होते हैं. There are 2 main types of wings movements for flying. 2 टाइप्स के कैसे होते हैं विंग मूवमेंट्स उड़ने के लिए. व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड्स द मूवमेंट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक मूवमेंट. जब जो पंख होते हैं जो ऊपर की तरफ होते हैं उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं अपस्ट्रोक मूवमेंट. व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड्स द मूवमेंट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रोक मूवमेंट्स. जब जो विंग्स नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रोक मूवमेंट्स. बीक ऑफ बर्ड्स.
बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव बीक्स, उनके दांत नहीं होते पर उनकी चोंच होती है। अ बर्ड यूजेस इट्स बीक्स टू कैच होल्ड एंड ईट फूड, और वही बीक उनको हेल्प करती है कि वो उस चीज़ को खाने को पकड़ सके, खा सके। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग तरीके की चोंच होती है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ईटिंग हैबिट ऑफ बर्ड्स डिपेंड अपॉन द शेप्स ऑफ देयर बीक्स एंड क्लॉज। जो उनकी शेप और साइज़ होता है वो भी सब बर्ड्स का अलग अलग होता है, और खाने की आदत भी हर बर्ड्स की डिपेंड करती है कि किस तरीके की उनकी चोंच और क्लॉस है। बर्ड्स कैन ईट इंसेक्ट्स, फ्लैश, ग्रेन्स और फ्रूट्स एंड नट्स। सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कुछ बर्ड्स जो होती है, कुछ चिड़िया जो होती है, अपनी चोंच से अपने आप को बचा के रखती है अपने दुश्मनों से, और यही बीक उनको हेल्प करती है इंसेक्ट्स को खाने के लिए, कोई भी अनाज खाने के लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, आगे पढ़ते हैं अलग अलग तरीके की चोंच के बारे में। स्मॉल हार्ड एंड पॉइंटेड बीक्स, स्पैरोज, पिजन्स एंड finches are small birds. They eat nuts, seeds and grain. Their beaks are short, hard and pointed to pick up and grind the grain. जो स्पैरो, पिजन्स और फिंचेस होते हैं, उनकी बहुत छोटी, ये छोटी छोटी बहुत बर्ड्स होती हैं। ये जो अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, अनाज हैं, ये सब अपने बीक से आराम से खा लेते हैं, क्योंकि इनकी बीक जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बट वो बहुत टाइट होती है और पॉइंटेड होती है, इसलिए वो उससे आराम से अपना अनाज उठा लेते हैं। स्पैरो यूज देयर बीक्स टू ड्राइव अवे द एनिमी बर्ड्स, और स्पैरोज जो होती है अपनी बीक की हेल्प से ही अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा लेती है। हुक्ड बीक्स, हुक्ड बीक्स आर meant to crack nuts and bite at hard fruits. A parrot has a hooked beak. It helps to crack the hard nuts and to eat fruits. A parrot also uses its beak to climb. हुक्ड बीक्स क्या होती है? हुक्ड बीक्स से आप क्या कर सकते हो? आप आराम से नट्स को तोड़ सकते हो, उसको बाइट कर सकते हो। पैरट की जो होती है हुक्ड बीक होती है, जिससे वो आराम से कोई भी नट होते हैं उनको आराम से तोड़ के खा लेती है, और अपनी बीक की हेल्प से वो क्लाइंब भी कर सकती है, चढ़ भी सकती है। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, बर्ड्स लाइक hawks, owls, eagles, vultures have strong, sharp and hooked beak. They use it to tear flesh of the animals that they eat. Birds जैसे hawks, owls, eagles, vultures, इन सब की बहुत ही शार्प, बहुत ही पैनी और स्ट्रॉन्ग बीक होती है, जिसकी हेल्प से वो जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश होता है, जो मांस होता है, उसको आराम से टीयर करके खा लेती है। Strong chisel-shaped and heavy beak. Birds like woodpeckers have chisel-shaped, strong and hard beak. Such a beak helps the bird to make holes in the bark of the trees. They bring out the insects from these holes and eat it. Woodpeckers की क्या होती है? Strong, बहुत ही मजबूत और हार्ड बीक होती है। उसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? पेड़ों में छेद कर देती है और उसमें से इंसेक्ट्स को निकाल के खा लेती है। Broad and flat beaks. Birds like ducks have broad and flat beaks. These beaks have holes on their sides. Such holes are called strainers. डक्स की जो होती है बहुत ही चौड़ी बीक होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, चपटी होती है। उन बीक की हेल्प से, उन बीक्स में क्या होता है? छोटे छोटे होल, उनके होल्स होते हैं दोनों साइड। उन होल्स को वो बोलते हैं स्ट्रेनर्स। इट स्कूप्स द मडी वाटर विद इट। द मड एंड द वाटर फ्लोज आउट through holes on the sides. The little plants and insects from the muddy water stay inside the beak and serve as food for the duck. इस जो स्टेनस होते हैं उसकी बॉडी, उसकी बीक के पास, वो क्या करते हैं? वो सैंड, मड वाला पानी अपने अंदर ले लेती है। जब वो मड और पानी अंदर उसके चला जाता है तो वो उस होल में से निकल जाता है, और उसमें जो प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके बीक में ही रह जाते हैं, तो डक का अपना फूड का काम ईजिली हो जाता है। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स. बर्ड्स लाइक swallows like short and broad beak. Their mouth is sticky from inside. When they fly, they keep their mouth open and insects get stuck into their mouth. बर्ड्स जैसे swallows होती है, उनकी बहुत ही छोटी और चौड़ी बीक होती है, चोंच। उनके माउथ है ना बहुत स्टिकी होता है, अंदर से बहुत चिपचिपा होता है। जब वो उड़ती है वो अपना माउथ ओपन रखती है, और जितने भी इंसेक्ट्स आसपास होते हैं वो उसके माउथ में जाके स्टक हो जाते हैं। लॉन्ग कर्व्ड एंड स्लेंडर बीक्स. A hoopay has long curved and slender beak to pull insects from holes in the ground. उनकी बहुत लंबी और स्लेंडर बीक होती है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में जो होल होता है उसमें से इंसेक्ट्स आराम से निकाल लेते हैं। ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स.
Kingfishers and storks have broad, long and pointed beaks. Kingfisher storks की बहुत ही चौड़ी और लंबी और pointed beaks होती हैं. It helps them to catch the fish from ponds and rivers. वो पानी में से आराम से fish को निकाल लेती हैं. They poke the fish with their beak and lift it out of the water. वो आराम से fish को easily अपनी beak की help के through निकाल कर खा लेती हैं. Feet and claws of birds. Feet and claws are very helpful to birds. उनके पैर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए, बर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. दे हेल्प देम इन कैचिंग एंड ईटिंग फूड. उनकी हेल्प से वो अपने दुश्मनों को भी पकड़ते हैं और खाना भी खाते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज. और अपने दुश्मनों से भी अपने आप को बचा लेते हैं. बर्ड्स हैव 2 legs with 4 toes on each foot. बर्ड्स के 2 पैर होते हैं और 4 टोज होते हैं उनके हर एक फुट में. दे यूज़ देयर फीट टू वॉक एंड हॉप अराउंड. अपने इसकी हेल्प से वो चलती भी है और कूदती भी है. दे ऑल्सो हेल्प टू कैच फूड और टू स्विम. उससे वो अपना खाना भी लेती है और स्विम भी कर पाती है, तैर भी पाती हैं. दे ऑल्सो हेल्प बर्ड्स इन पर्चिंग ऑन ट्रीज. द टाइप ऑफ फीट ऑफ अ बर्ड टेल्स इट्स फूड एंड लिविंग हैबिट्स. उनकी फीट बर्ड्स की बताती है कि उनके खाने की और रहने की हैबिट क्या है. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक वर्चर्स एंड ईगल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. वर्चर्स और ईगल्स की क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होते हैं उनके क्लॉज. दीज क्लॉज आर कॉल्ड, उनके क्लॉज को बोलते हैं टेलॉन्स. विद द हेल्प ऑफ टेलॉन्स दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे. वो अपने दुश्मनों को आराम से इसकी हेल्प से पकड़ लेते हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स अपने शिकार को आराम से पकड़ लेते हैं. Climbing birds have 2 toes which point to upwards and 2 toes which point downwards. Climbing birds के 2 toes होते हैं जो 2 toes जो उसके आगे की तरफ होते हैं और 2 toes उसके पीछे की तरफ होते हैं. These help them to climb up and hold on the trees. वो हेल्प करता है कि वो आराम से पेड़ पर चढ़ पाए. Parrot and woodpecker are climbing birds. इसलिए parrot और woodpecker को climbing birds कहा गया है. Perching birds. Perching birds use their feet to hold onto tree branches and sit on them. This is called perching. Perching birds के feet जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं कि वो branches पे आराम से बैठ पाएँ. इसे हम बोलते हैं perching. They have 3 toes in front and 1 at the back to help them to hold a branch. 3 उनके आगे होते हैं और एक पीछे होता है जो आराम से वो branch को उसकी हेल्प से होल्ड कर पाते हैं. They can even sleep also while perching. Perching के टाइम पे वो आराम से सो भी जाते हैं. Like sparrows, crows, pigeons, parrots are perching birds. Hens and cocks are scratching birds. Hens और cocks को scratching birds कहा गया है. क्यों? They have sharp and hard claws to dig the ground. वो आराम से गड्ढा खोद देते हैं. They scratch and dig the ground to bring out the insects. वो आराम से scratch करके insects को बाहर निकाल लेते हैं and build the seeds. They have 3 front toes and 1 short back toe. उनके 3 आगे front toes होते हैं और एक पीछे होता है. Ducks and swans swim in water. Duck और swans कहाँ पे पानी में swim करते हैं. They are swimming birds. इसलिए उन्हें swim birds कहा जाता है क्योंकि they have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 at the back. 3 toes आगे होते हैं और एक पीछे होता है. These help them to push back the water while swimming. इसलिए वो उनको हेल्प करते हैं, जब वो swim करते हैं तो पानी को पीछे फेंकते रहते हैं. Wading birds. Wading birds have long legs with spread out toes that help them to move in water. Wading birds के बहुत ही लंबे पैर होते हैं जिसकी जो with spread out toes that help them move in water, जो हेल्प करते हैं उनको पानी में घूमने के लिए. They wade through muddy water. Cranes, storks, herons, etc. are wading birds. Cranes, stork और herons को wading birds कहा गया है. वो they pick up fish and other insects from water, muddy water. वो गंदे मिट्टी वाले पानी में से भी इंसेक्ट्स को आराम से निकाल लेते हैं. Nest of birds. A bird also need a home to live in. Its home is called nest. Birds को भी घर चाहिए होता है रहने के लिए. उनके घर को हम बोलते हैं nest. Most of the birds build their own nest on trees. वो अपना घर खुद बनाती है ज़्यादातर birds trees पर. They use straw, grass, twigs, feathers, paper, cotton, wool, mud and leaves in making their nest. वो अपना नेस्ट बनाते हैं इन सब चीज़ों से. स्ट्रॉ यूज़ कर लेती है, घास ले आती है, फेदर ले आती है, पेपर ले आती है. Some birds make their nest in broken walls, in tall building, etc. कुछ birds अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, टूटी दीवारों में या बिल्डिंग्स में. Birds lay their eggs in these nests. जो चिड़िया होती है वो अंडे देती है अपने नेस्ट में
बर्ड्स लुक फॉर सेफ प्लेसेस टू मेक देयर नेस्ट, वो बहुत ही सेफ जगह ढूंढते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। दे वॉन्ट टू बी सेफ फ्रॉम द एनिमीज एंड बैड वेदर, वो अपना घर ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पे वो उन्हें वेदर कंडीशंस की प्रॉब्लम नहीं आए, जहाँ पे वो अपने आप को एनिमीज से बचा सके। दे ऑल्सो ट्राई टू मेक देयर नेस्ट वार्म एंड कम्फर्टेबल फॉर देयर बेबीज़, और वो अपना नेस्ट बहुत ही गर्माहट और कम्फर्टेबल बनाती है अपने बेबीज़ के लिए। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट, अलग बर्ड्स अलग अलग तरीके के घर बनाती है। कुकू इज़ वन ऑफ द बर्ड दैट डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, कुकू ऐसी बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती। इट लेट्स इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ अ क्रो, वो कौवे के नेस्ट में अपने अंडे को देती है। बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड कीवी मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड नॉट ऑन ट्रीज, ऑस्ट्रिच और कीवी जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, अपना घर ग्राउंड पे, ना कि पेड़ों पर। अ स्पैरो बिल्ड अ नेस्ट ऑन द ट्री, स्पैरो अपना घर बनाती है ट्री पर। अ टेलर बर्ड स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट, टेलर बर्ड जो होती है वो पत्तियों को सिल के अपना घर बनाती है। अ पैट्रिज बिल्ड्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, पैट्रिज बर्ड जो होते हैं वो अपना घर बनाती है ग्राउंड में। अ वीवर बर्ड बिल्ड नेस्ट विद ट्विग्स, ग्रास, वूल एक्सेट्रा, वीवर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है ग्रास और वूल से। द वुडपेकर पेक्स इनटू अ ट्री ट्रंक एंड मेक्स अ होल फॉर अ नेस्ट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, जो वुडपेकर होती है वो पेड़ की ब्रांच में ही, पेड़ की ट्रंक में ही उसको होल करके वहाँ पे अपना बहुत ही सुंदर सा घर बनाकर रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Remember, birds are an important part of nature and we must love, protect, and care for them. I am proud of your learning today. See you soon with another interesting EVS lesson.